you should stop chasing money. Chase the success, chase your life's purpose. उसके साथ में ये बाय प्रोडक्ट है, ये आ ही जाएगा. सबको मनी अट्रैक्ट करना है लाइफ में. मनी के साथ में रिलेशनशिप हमारा ऐसा होना चाहिए एक फ्रेंड का. ओके. मनी को कभी भी चेज करने की कोशिश मत करो. Money will come into your life as a tool. It's a tool basically, ना? Yeah. To give you experiences, travel है, family है, relationships हैं. I want to have like nicer experiences with my family. ठीक है, travel plan करना है. तो money only works as a tool. अगर हम अपना potential अच्छे से समझ लें, अपनी capabilities को समझ लें, तो हम अपनी life जैसा हम चाहते हैं, वैसा हम create कर सकते हैं. What is manifestation exactly, and how does it work? Yeah. So manifestation is that you dream about something and then it becomes your reality. It manifests. Okay. Whatever your thoughts are, जब वो real हो जाते हैं, आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, that's manifesting. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए. हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned life coach and a manifestation coach. So we will get to learn so many things from her insights and experiences. So let's welcome our honor of guest, Miss Aarti. Hello ma'am. Hi, thank you so much for having me here. Thank you. So Miss Aarti, firstly I would like to know about your journey कि आप basically life coach and manifestation coach कैसे बने? So basically in background तो मेरा graphic designer का है. Okay. I have worked as a graphic designer in an MSc for around 7 years. But in 2020 I quit my job because वहाँ पर मेरे को contentment feel नहीं हो रहा था. Right. The job was not fulfilling. And I want to do something else, something more. And during my tenure with that MNC as a graphic designer, Yeah. I figured out that, leadership roles, something like that was really attracting me. Right? I wanted to lead a team or maybe work with people जहाँ पे उनका mindset shift हो सके. I used to talk very positively with my team members as well. But somehow I felt कि नहीं यार, graphic designing में वो चीज़ नहीं हो रही है. So I just quit my job. ठीक है, I'll explore something else. And then after 2020, I think by the end of 2020, I quit my job. And starting 2021, Yeah. I also started my YouTube channel. I started Okay. blogging just to spread positivity and all of that. Right. But at the same time, if you have to be relevant also, to Correct. spread positivity. And I was not a very big influencer. So why would somebody watch my videos? Exactly. Yeah. So I also, then tried my hand in doing makeup and stuff. Okay. So yeah, a lot of things I little bit about you've done so many tried. things. Yeah. But I think in 2019 my father passed away. Okay. And what happened then, ki it started, anxiety attacks and everything Right. started kicking in. तो उसके बाद क्या हुआ कि I immediately I knew that I wanted to spend some time with myself. वही मुझे ठीक कर पाएगा, because otherwise life was fine, life was good. Yeah. And I had accepted my father passing away. तो फिर मुझे इतना क्यों प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी क्यों मुझे इतना फील हो रहा है. So in 2020 itself, I started doing meditation. Okay. अपने आप से guided meditations online देखकर and all of that. Yeah. That really helped me actually, because मुझे 2-3 बार anxiety attacks हुए out of nowhere. Yeah. I mean, it just kicked in.
तो उसके बाद I was put on some antidepressants medications. Okay. So for 10-15 days I took the medications properly. Yeah. But वो क्योंकि sleepy आप रहते हो and you know you are just not yourself at that moment. Correct. तो जब मुझे सब कुछ समझ में आया कि ये medication है क्या, ये चल क्या रहा है, then I understood कि antidepressants हैं, तो like मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे depression as such क्यों है, कोई reason भी नहीं है. So I think my father passing away, this major setback in my life, you know, pushed me a little towards spirituality. Okay. Yeah. So उसके बाद जब थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू किया, अपना खुद को समझा, खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, Yeah. तो फिर धीरे धीरे कि लाइफ थोड़ी सी इजी लगने लगी. You know, you are able to take much better decisions जब आप Yeah. खुद को समझने लगते हो. And I have a very strong belief in Guruji. Okay. Yeah. So that also really helped. Hmm. And somehow unknowingly, I would say when you start spending time with yourself and sort of cleanse yourself from inside, Hmm. Yeah. you unknowingly start manifesting. Hmm. That's right. So that started happen. I mean, like I was like, okay, Guruji is taking care of me. You know, whatever I'm wishing, it's coming through. Like Right. small wishes, not very big, not really big aspirations. Otherwise, life is good. I have everything. तो अब और क्या नहीं, ठीक है, गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं. But in this year, in 2025, Yeah. I was looking for something like कि podcasting करना है, you know, I wanted to have conversations around this topic. Right. अभी early this year I only found out about manifestation and law of attraction. और जब उसके डिटेल में समझने की कोशिश की, I was like, ये तो already हो रहा है. I'm visualizing also. Affirmation is something कि that's your way of life. I mean, like how you talk to yourself. Those are basically affirmation. Right. तो वो मैं already सब कुछ हो ही रहा है. तो अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी अब समझ में आया, ये अच्छा वो है क्या, ठीक है. तो फिर I enrolled for one such course under Pooja Vineet. And she's the leading life coach in our country. Okay. तो उनके अंडर फिर मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया. एंड देन जब वो सब कुछ किया, उसमें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है लाइफ में. यू नो, जो भी सोच रहे हैं वो तो हो ही जाता है. करेक्ट. हाँ, तो उसमें काफी सारी चीजें पता चली थी, हाउ टू बी पॉजिटिव. एंड इन दैट सेशन हम लोगों का एक छोटा सा एक सेशन हुआ था. उसमें बेसिकली व्हेन आई फाउंड आउट व्हाट माय लाइफ पर्पस वाज, या. एंड आई रियली रेजोनेटेड विद दैट, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था दैट एक गोल मिल गया. You know, अभी my thoughts was scattered ना, अभी I was trying different things की करना है. इतना पता था positivity spread करनी है, इतना पता था लोगों को help करना है, but कैसे help करना है, you know, कैसे reach out करना है. Why would somebody want to listen to me? Right. उसके लिए मुझे relevance तो चाहिए ना. तो उसमें मुझे वो पता चला. And then I picked basically your niche picks you, the manifestation picked me. तो उसमें मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी हैपनिंग इनटू माय लाइफ. तो चलो ठीक है, इसी से हेल्प करते हैं. बिकॉज मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिकली कि आप अपने बहुत बड़े बड़े सपने, आप वो सब कुछ पूरा कर सकते हो, बट स्पिरिचुअली ऑल्सो. राइट. सो देन आई सेड कि हाँ, अगर ये सीक्रेट सबको पता चल जाए, द सीक्रेट बुक इज ऑल्सो ऑल अबाउट दैट ओनली. ओके. या तो वो बुक पढ़ने के बाद में तो कि द सीक्रेट इज रिवील्ड, इट्स ऑल इनसाइड ऑफ अस. अगर हम अपना पोटेंशियल अच्छे से समझ लें, अपनी कैपेबिलिटीज को समझ लें, तो हम अपनी लाइफ जैसा हम चाहते हैं वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके. सो दैट इज हाउ माय जर्नी इन manifestation coaching and life coaching started. That's great. So, Miss Aarti, if I would ask you, like, what is manifestation exactly, and how does it work? Yeah. So manifestation is that you dream about something, and then it becomes your reality. It manifests. Okay. Whatever your thoughts are,
जब वो रियल हो जाते हैं, आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, दैट्स मैनिफेस्टिंग। और इसको अच्छे से करने के लिए you really need your pure intentions, clarity of mind, focus. आपका जो mindset है वो action oriented होना चाहिए. It's not about just कि visualizing कि मेरा एक thought process है कि यार मुझे एक बड़ी गाड़ी लेके मेरे को BMW लेना, पर BMW के लिए मेरे को काफी efforts भी तो डालने पड़ेंगे ना। BMW के लिए मुझे उतना money भी तो save करना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए अब यू हैव टू बी रियली एक्शन ओरिएंटेड जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो। ओके, या सो मिस आरती, इफ वी स्पीक अबाउट अफर्मेशंस, हम मतलब काफ़ी सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो अफर्मेशंस होती हैं ये वर्क नहीं करती हैं, तो ऐसा क्यों होता है उस टाइम पे? क्योंकि हमारी बिलीफ की कमी होती है। ओके, हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे होते हैं आई एम केपेबल, बट डू आई रियली फील दैट आई एम केपेबल? दैट्स द कैच। तो आपको सिर्फ बोलने के लिए चीजें नहीं करनी है, सिर्फ लिख कर कि 21 टाइम्स ऑफ एफर्मेशंस आप लिख रहे हो सेम सेंटेंस एवरी डे, दैट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट बिलीव इन दोज एफर्मेशंस। लाइक माय लाइफ बिगेस्ट एफर्मेशन इज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी, एंड आई ओनली से दिस कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई नेगेटिव या एडवर्स सिचुएशन भी होता है ना, तो उसमें मुझे कुछ पॉजिटिव ही दिखता है, एंड देन आई से थैंक यू भगवान जी। So, as you mentioned earlier, that meditation helped you a lot, right? So, if someone wants to start their own meditation journey, so what should be their first step? The first step should be just sit with yourself in silence. Okay. Just try to sit with yourself in silence, because ये इतनी बड़ी चीज है ना कि हम लोग जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो when we find out कि जब सब खजाना अपने पास ही है, तो बाहर आपको जाना नहीं है, and when you know कि आपके पास सब कुछ ही है, तो now you are not a beggar anymore. You don't carry that beggar energy. Right. Now you are a king or a queen of your life, क्योंकि आपको पता है सब कुछ आपके पास ही है already. Exactly. तो the first step is start sitting with yourself and process करो कि क्या feel हो रहा है, क्या emotions हैं, कि मेरे को ऐसा क्यों feel हो रहा है, मेरे को resentment क्यों feel हो रही है, कि इसका cause क्या है, ये कहाँ से आया है, या मैं compare क्यों कर रही हूँ, मुझे jealousy क्यों feel हो रही है। Right. तो ये सारे क्वेश्चन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंट्रोस्पेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, कि आप अपने साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, एंड आप वो अनलॉक कर लोगे जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। Definitely. Yeah. And Miss Aarti, being a life coach, आपके पास काफी clients आते हैं जिनके अलग अलग issues होते होंगे। So आप ये बता सकती हैं one of the common issues, one of the major issues उनके कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज कॉमन है, Okay. और रिलेशनशिप इश्यूज, हस्बैंड वाइफ, या फिर पेरेंट चाइल्ड इश्यूज कि समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को बड़ा कैसे करेंगे। Exactly. तो फाइनेंशियल इश्यूज बेसिकली वही है कि हमारा माइंडसेट कैसा है अबाउट मनी एंड अबंडेंस। हमारी वोकैबुलरी ठीक नहीं है अपने लिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, हाँ यार कैसा है, बस चल रहा है, बस कट रहा है, अब इंस्टेड ऑफ स्टार्ट सेइंग कि सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़े बहुत स्ट्रगल आ रहे हैं बट ठीक है, बट एवरीथिंग एल्स इज फाइन। तो अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट, अगर हम अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या वही सारी चीजें हम में हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन की कमी है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। ट्रू। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो देखे जाते हैं। Yeah. And Miss Aarti, usually what happens that we, often look for validation from other people, right? So उस टाइम पर हमें मतलब clarity नहीं होती है, अपने बारे में हम sure नहीं होते हैं। So उस टाइम पे वो clarity हमें कैसे मिल सकती है? Yeah. हम वैलिडेशन तभी सीख करते हैं जब we don't believe in ourselves. और दूसरा कि हम कोई काम किसी को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, Correct. not for ourselves. तो ये बेगर एनर्जी है बेसिकली, व्हेन यू आर सीकिंग वैलिडेशन। तो जब भी ये चीज आपके सामने आए, आपको ऐसा लगे कि
यार एक बारी पापा बोल देंगे ना कि सही किया है तो मेरा मतलब सब सेट है ना? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी से भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं फील करनी चाहिए। जब भी ऐसा फील हो आप उसी समय अपने माइंडसेट को प्रोसेस करो कि मुझे क्या ठीक लग रहा है। नो, गो विद योर इंट्यूशन और आप अपनी इंट्यूशन के साथ में जाओगे ना, आप हमेशा सही करोगे। इट शुड बी सेल्फलेस। उसमें कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए उसके पीछे। एग्जैक्टली। पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए और आप जो भी करोगे लाइफ में वो सही होगा और सब लोग आप आके प्रेज ही करेंगे। राइट। सो जैसे कि अभी आप आरती मैम बेसिकली आप मनी और अबंडेंस की बात कर रहे थे, राइट? सो अगर हमें वो अपनी लाइफ में चाहिए, सो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मनी अट्रैक्ट करना है तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जैक्टली। सबको मनी अट्रैक्ट करना है लाइफ में। या मनी के साथ में रिलेशनशिप हमारा ऐसा होना चाहिए एक फ्रेंड का। ओके। मनी को कभी भी चेज करने की कोशिश मत करो। मनी विल कम इनटू योर लाइफ एज अ टूल। इट्स अ टूल बेसिकली ना, या टू गिव यू एक्सपीरियंसेस। ट्रैवल है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं। आई वांट टू हैव लाइक नाइसर एक्सपीरियंसेस विद माय फैमिली। ठीक है, ट्रैवल प्लान करना है तो मनी ओनली वर्क्स एज अ टूल कि वो है आपके पास और वो काम करे। यू शुड स्टॉप चेजिंग मनी, चेज द सक्सेस, चेज योर लाइफ पर्पस। उसके साथ में ये बाय प्रोडक्ट है, ये आ ही जाएगा। तो ऑब्सेशन विद मनी शुड बी अवॉइडेड ओके। कि मुझे और होर्डिंग कि मुझे होर्ड करके सेव करना है, सेव करना है। जब जब मुझे जरूरत होगी मेरे पास पैसा होगा, ये बिलीव करना है। तो अबंडेंस, आप ऐसा फील करो कि आप अबंडेंट हो। अपने आसपास नेचर में अगर हम देखें, हमारा नेचर, हम इसी से ही तो बने, हमारी बॉडी इसी से एक्यूमुलेट हुई है। ट्रू। तो हमारे आसपास सिर्फ अबंडेंस ही है। एक पेड़ लगाने के लिए सिर्फ एक सीड की जरूरत होती है। अब वो जब पेड़ बड़ा होता है, पेशेंस लगता है, उसमें टाइम लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट जब वो बड़ा होता है तब वो कितने ज्यादा काम आ रहे हैं हमारे, है ना? और उसके ऊपर कितने सारे फ्रूट्स लगते हैं और उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही अबंडेंट हम भी हैं। जस्ट वन कि मैं एक इंसान में बहुत अबंडेंट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी और की। आई कैन ओनली गिव टू अदर पीपल, इतना है मेरे पास। बट क्योंकि हम स्कैरसिटी माइंडसेट में जी रहे हैं ना कि यार मेरे पास जो है वो खत्म हो जाएगा, मैं शेयरिंग इज केयरिंग भी बोला जाता है ना, वो बहुत, आई थिंक एवरीबडी शुड मीन इट। शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करना शुरू करो, आप फील करोगे कि आप उतना ज्यादा और अट्रैक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो वट एवर इट इज, वी अट्रैक्ट वट वी आर। तो अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो यू फील, आप इस चीज को बिलीव करो कि जब जब मुझे जरूरत होगी पैसा मेरे पास होगा। एंड आई एम नॉट स्केर्ड टू डू हार्ड वर्क। आई एम विलिंग टू डू ऑल। मैं सब कुछ, अपना तन मन सब कुछ डाल सकती हूँ अगर मुझे मेहनत करनी है। तो मनी विल जस्ट कम इनटू योर लाइफ। इट्स अ फ्लो, मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, तो वो फ्लो करेगा। Correct. And also, Miss Aarti, I would like to ask you that how can we love ourselves? Because हम लोगों से काफी सुनते हैं कि love yourself, start doing, basically start loving yourself, but वो चीज हम कर नहीं पाते, अपने आप को नेगेटिव ही बोलते चले जाते हैं। तो उस टाइम पर मतलब हमें क्या करना चाहिए? इससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आया। तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोर्स लाइफ कोचिंग का, तो उसमें एक मिरर एक्सरसाइज के बारे में बात। ओके। तो मिरर एक्सरसाइज इज बेसिकली व्हाट कि एवरी डे यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and just acknowledge yourself as it is. Just look at yourself and say all the beautiful things, whatever you can imagine. जो आप चाहते हो कि दुनिया आपको बोले ना, वो आप खुद को बोलो, खुद की आंखों में देखकर। And you say that I love you and I love you deeply. I love you from the bottom of my heart. Thank you so much for being so great. You know, you're just appreciating your body, your looks and everything. Right. So do that. तो जब ये मिरर एक्सरसाइज हुआ तो मुझे याद आया बचपन से ही ना, आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके। अ लॉट ऑफ टाइम। जितने भी, ऐसा नहीं है मेरे में फ्लॉज भी होंगे, बट उन फ्लॉज की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जो अच्छा है सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो ना। आई यूज्ड टू स्पेंड, मतलब अननोइंगली आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट लुक एट माई सेल्फ एंड टॉक टू माई सेल्फ। And that is mirror exercise जो मुझे अभी इतने टाइम बाद पता चला। So that's very very important. Self love is the first love you should be doing
अपने जीवन में डेफिनेटली, किसी और को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो. एग्जैक्टली. Fill your vessel with your own love. Only then you will be able to spread it. सो आरती मैम, अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल 10 मिनट मॉर्निंग हैबिट सजेस्ट करनी हो हमारी ऑडियंस को, तो वो हैबिट आप क्या सजेस्ट करोगे? I think जिसके बारे में अभी मैंने पहले बात की, जी. try to sit with yourself. या. Self reflective questions हैं कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन में हो आप, और आपको कुछ भी फीलिंग्स हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उसको एनालाइज करो, प्रोसेस करो, और डेली अपने साथ में बैठो, सुबह 10 मिनट का. और फिर उसके बाद जो भी आपको अच्छे आंसर्स उसमें से मिल रहे हैं, क्योंकि सारे आंसर्स हमारे अंदर ही, करेक्ट. हमको पता है कि हमको क्या चीज़ बॉदर कर रही है. मे बी दुनिया के आगे हम लोग नहीं बोलेंगे कि हमको क्या बॉदर कर रहा है, बट डीप इनसाइड हमको पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है. राइट. तो उसको एक्नॉलेज करो, और जब वो एक्नॉलेजमेंट हो जाए तो फिर थैंक यू करो, भर भर के जितना थैंक यू कर सकते हो. ग्रैटिट्यूड इज समथिंग, इट्स लाइफ चेंजिंग. करेक्ट. सो मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, इट्स लाइक कि ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज या प्रैक्टिस नहीं है. शुड बी योर लाइफस्टाइल. और ग्रैटिट्यूड आपका लाइफ ऐसे चेंज कर सकता है, क्योंकि जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतने ही वो अच्छे एक्सपीरियंसेस लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. ओके. तो मॉर्निंग में सुबह 10 मिनट अगर अपने साथ बैठो और थैंक यू बोलो यूनिवर्स का, तो you will start seeing the changes. Okay. Yeah. So आरती मैम, being in this profession, being a life coach, जब भी आप अपने क्लाइंट से डील करते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही फेस करना पड़ता है कि कभी कभी इमोशनली भी आप इन्वॉल्व होते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली डिटैच रखना पड़ता है विद योर क्लाइंट्स. और सी, द इंटेंशन इज, the pure intention of becoming a life coach is to help others Right. and to spread love. तो वही बेसिस होना चाहिए. आई थिंक चैलेंजेस आने तब शुरू होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाते हैं कि मुझे क्लाइंट बेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. आई रियली वांट टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दैट, बट दैट वोंट हेल्प. एज आई सेड कि मनी विल कम, Right. वो उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो अदरवाइज अगर आपका बेस, अगर आप क्लियर हो अपनी माइंड में कि आपको हेल्प करना है, आपको प्यार स्प्रेड करना है दुनिया में, तो यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प पीपल, तो फिर चैलेंजेस उतने ज़्यादा, बस चैलेंज इतना ही होता है क्योंकि आप इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व होते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना. ओके. सो मिस आरती, अगर किसी को मतलब एक लाइफ कोच बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी क्या होती है? You have to be a great listener ओके. if you want to become a life coach, and there should be a real passion to help others. राइट. रियल पैशन. अगर सिर्फ क्योंकि लाइफ कोचिंग बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है और सब लोग लाइफ कोच बनना चाह रहे हैं, दैट वोंट हेल्प. लाइफ कोचिंग इज अ स्किल दैट कम्स नेचुरली टू यू. आपकी देखोगे कि वो लीडरशिप, एक ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी हैं जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है. आपको लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं, यू नो, कि अच्छा यार मेरे को बता, ठीक, मैं ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ठीक है. अगर आपको आपके साथ ऐसा ज्यादा हो रहा है या लोग आपके ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि आप एक लाइफ कोच बन सकते हो. और उसके पीछे आपका जो एक फ्यूल है, वो फ्यूल यही होना चाहिए कि यू वांट टू रियली जेन्युइनली हेल्प पीपल. राइट. सो व्हाट डू यू थिंक कि एटलीस्ट लोगों को वंस इन अ वाइल जो है लाइफ कोचिंग सेशंस लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए. लाइफ कोचिंग सेशंस आर वेरी वेरी, क्योंकि देखो भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो लाइफ कोचिंग मैनुअल ही है, बट सब लोग पढ़ रहे हैं. और सब लोग अगर पढ़ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं? नहीं पढ़ सकते ना. या फिर जो संत महात्मा हैं इतने बड़े, वो जो भी आपको दे रहे हैं वो लाइफ कोचिंग लेसन्स ही हैं. करेक्ट. तो हम में से यंगस्टर्स बेसिकली कितने लोग सुन रहे हैं, है ना, नहीं ज्यादा नहीं सुन रहे. तो लाइफ कोचिंग इज बेसिकली दैट कि हाँ, उसमें ऐसा क्या होता है कि क्योंकि वो प्रवचन कर रहे हैं, उनका काम है वो, तो हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं. ये तो सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारा तो वो गोल भी नहीं है. एग्जैक्टली. बट लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, रियली ग्रो करना है, हमारा लाइफ पर्पस इस दुनिया में आने का, सोल का पर्पस यही है कि सोल लेवल पे आपको इवॉल्व होना है, राइट. ग्रो करना है. डेफिनेटली.
तो फिर लाइफ कोच आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने पुराने ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप रीप्रोग्राम करो कि आप आगे और ग्रो कर सको। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स चलते आ रहे हैं जो आपको रोकते हैं आपकी ग्रोथ में, या कि अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और आपको आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं यार मेरे बस की कहाँ है ये, है ना? करेक्ट। तो उससे डील करने के लिए सही तरीके से नॉट एवरीवन इज केपेबल कि वो अपने आप से ही उस चीज पे काम कर सके, तो लाइफ कोचिंग बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, and if you would like to directly reach out to me for life and manifestation coaching, then the details are given on the screen. Thank you.